آپ کو بھی کوئی آج تک آفر آئی الومناٹی سے؟ ویسے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جو پولیٹیشنز، میوزیشنز اور اس قسم کے لوگ، ان کی اکثر چاہت بھی ہوتی ہے اور وہ جوائن کرتے بھی. شیخ ان کو تو آفر بھی کی جاتی ہے. ہاں آفر بھی. 1776 میں اراؤنڈ جو ہے نا، ایسے تو شروع سے ہے لیکن ایک کلٹ پراپرلی آرگنائزڈ طریقے سے انہوں نے انٹلیکچوئلس کو نا دنیا سے اسکالرشپ دیتے تھے، امریکہ بلاتے تھے، ٹاپ ناچ یونیورسٹی سے پڑھاتے تھے، اور پھر ان کے نا سیکس اسکینڈلز بناتے تھے کہ وی ہیو یور سیکرٹس، آپ جب اپنی کنٹری میں واپس جائیں گے تو ہم آپ کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، تو یو ہیو ٹو، مطلب آپ ہماری رکابوں میں، آپ ہمارے کنٹرول میں ہیں. ویسے یہ والی ساری ڈسکشن بڑی چسکے والی ڈسکشن ہے، اور جب بھی کوئی ٹاپک ایسا ہوتا ہے نا تو ایک چسکا پارٹی آ جاتی ہے. اچھا چسکے والی تو ہے ہر بندہ اٹریکٹ اس میں ہوتا ہے، لیکن ویسے ایک مسلمان کے لیے ایسا علم حاصل کرنا نا جو کہ بینیفیشیل نہیں ہے، اس کو زیب نہیں دیتا وہ نہ کرے، تو بیسیکلی دس نالج از بینیفیشیل یہ پہلے بات فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الومناٹی فری میسنز دس از علم لا ینفع، وی ڈونٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس اور سارا. لیکن اگر آپ اس کی ان ڈیپتھ پڑھیں، روٹس پڑھیں، تو یہ ابلیس اور شیطان سے اور میجک سے اور پورے فرعون کا جو کلٹ تھا وہ کیا تھا بیسیکلی، وہ یہ تھا کہ وہ جو عورتوں کو مارو، مردوں کو زندہ کرو. آج کل کیا ہو رہا ہے، عورتوں کو زندہ کرو کیا مطلب، بیل بورڈز پہ ان کو چڑھا دو، ہر جگہ ان کو سامنے ٹی وی شوز پہ، اس پہ ہر جگہ ان کو کر دو، اور مرد کو بالکل نامرد بنا دو. جیسے ان کے جو باڈی کے کیمیکلز ہوتے ہیں، باڈی کے جو بیسیکلی جس میں ٹیسٹوسٹیرون ہے، مختلف وہ ہیں جو کہ مرد بناتے ہیں، ان کو ختم کر دو. اور ایون آج کل دیکھیں نا وہ ٹرینڈ ہے، جو ہیروز بھی وہ ہیں جو تھوڑے سے ایسے سے ہیں. یا شیطان نے کہا تھا نا کہ میں اللہ تعالیٰ کی خلقت کو، کریشن کو چینج کر دوں گا. So this is exactly what شیطان is doing. بالکل. تو وہ یہ کر رہے ہیں. اور پھر مردوں کو اسلام الدین نبی نے کہا تھا کہ کسی امت کو، کسی قوم کو اپنے تباہ کرنا ہے نا، تو ان کے مردوں میں فحاشی اور عریانی کو پھیلا دی جائے، اور ہمیں اسی طرح سے تباہ کریں یہ لوگ. اور یہ الومناٹی اور یہ ساری جتنی بھی سائنس ہے، بڑے اس کے اپیرنٹ سائنس وغیرہ موجود ہیں. اور اصل میں بڑے لوگ کہتے ہیں کانسپیریسی ہے، ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسپیشلی ہمارا جو ایک اسکیپٹک ایک طبقہ ہے نا، ویسٹ میں اسکیپٹسزم جب سے آیا، اسکیپٹکس جو ہیں یہ ماڈرن سائنس پڑھ لی، سائیکالوجی پڑھ لی، اس کے بعد اسکیپٹک ہو گئے. تو دیکھیں میرے تو خیال میں کہ اگر ہم شروع سے دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے، تو یہ اکلٹ اور یہ بلیک میجک اور پھر ہاروت و ماروت کا ذکر ہے قرآن میں، سورہ البقرہ میں ورس 1 اور 2 میں. تو یہ لوگ تو بہت پہلے سے ایگزسٹ کر رہے ہیں. دیز آر جسٹ نیمز، فری میسنز، الومناٹی، یہ تو ماڈرن نیمز ہیں. یہ تو فرعون کے زمانے سے، پھر حضرت نوح کے زمانے سے میرے تو نزدیک یہ تب سے چلتے آ رہے ہیں. تو ہاؤ کین اٹ بی اے کانسپیریسی؟ مطلب لوگ اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں. اور یہ اسکیپٹک وہی لوگ ہیں جو مطلب گوروں کو کبھی اسکیپٹسزم کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. یہ ہمیشہ دین کی بات کو اسکیپٹسزم کی نظر سے. اصل میں ہے تو یہ شیطان کی پارٹی نا، مختلف ادوار میں یہ مختلف ناموں کے ساتھ ایگزسٹ کرتی رہی ہے. اور جب سے انہوں نے سیکرٹ ڈارک علم کو ایکسپلور کرنا شروع کیا ہے، آپ ہسٹری پڑھ لیں، سومیرینز کی ٹیبلٹس آپ دیکھ لیں، گریک میتھولوجی آپ دیکھ لیں، وہ بھری ہوئی ہے جادو ٹونے سے. ہندو میتھولوجی جادو ٹونے سے بھری ہوئی ہے. پھر آپ گریک میتھولوجی دیکھ لیں، ایجپشین میتھولوجی دیکھ لیں. تو یہ چلا آ رہا ہے بہت پہلے سے، ڈارک سیکرٹس اور ڈارک میجک اور اکلٹ سائنسز. تو میرے خیال میں کہ جس نے تھوڑی سی بھی ہسٹری پڑھی ہے وہ سمجھ جائے گا گیم پیچھے سے. اور اس میں بہت زیادہ پیسہ انوالوڈ ہے. ایون پیپل گیٹ رچ بائی میجک. بالکل. ایک شیخ تھے، بالکل بہت، میں نام بھی لے لیتا ہوں چلیں، شیخ عبدالرزاق بن بدر، مدینہ کے، شیخ محسن العباد کے بیٹے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں مدینہ کے. تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے مجھے آگے خود بتایا، پرسنل سٹوری ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا پڑوسی بہت امیر تھا، حالانکہ وہ ریکس ٹو ریچز والی سٹوری تھی اس کی. میں نے کہا یار تو کیسے کر رہا ہے؟ کہتا تو نے امیر ہونا ہے. کہتا میں نے کہتا تجھے میں جو کہوں گا نا پھر تو نے وہ کرنا ہے. کہتا ٹھیک ہے، ریڈی یار. اس نے اس کو پرچی پہ ایک نام لکھ دیا جن کا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ تم نے فلاں دن مغرب کے ٹائم جب سورج بالکل غروب ہو رہا ہو نا، حدیث میں کہتا ہے شیطان جو ہے نا سورج کے سامنے آئے تو اپنے دو سینگوں کے بیچ میں سورج رکھتا تھا تاکہ یہ، سو بیسیکلی اس میں عبادت کرنا بھی منع ہے. تو اس نے کہا کہ تم نے اس سی شور پہ جانا ہے، وہاں پہ اس کا نام لینا بار بار. تو وہ گیا وہاں پہ اور اس نے اس کا نام لینا شروع ہو گیا بار بار نا. کہتے ہیں کہ واللہ العظیم شیخ ایک عجیب سی کریچر سمندر سے نکلی اور میرے سامنے آ گئی. ایسی کریچر نہ وہ فش تھی نہ وہ اینیمل تھی. I've never seen it before. تو کہتی ہے کہ بولو. اس نے کہا میں مالدار ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ تم نے کچھ کام کرنے ہوں گے، بتائیں. انہوں نے کہا تمہیں غار میں جا کے ایک سرکل کے اندر یہ پڑھنا ہوگا، اسی میں یورینیٹ کرنا ہے، اسی میں
एक्सक्रीशन करनी है, जो भी करनी है इतने दिन तक। उसने कहा चलो ठीक है मैं करूंगा। कहता मुझे तो बुरा तो बहुत लगा। उसने कहा कि तुमने दूसरा काम, तुमने अपनी किसी महरम से फॉर्निकेशन एडल्ट्री करनी होगी, ज़िना करना होगा महरम से। तो उसने कहा अच्छा। कहते हैं मुझे ना अजीब सा होना शुरू हो गया। कहते हैं तुमने तीसरा काम करना है, नमाज छोड़ देनी है। कहते हैं मेरी तरबियत मेरे माँ बाप ने नमाज पे इतनी पक्की की हुई थी कि मैं नमाज कभी नहीं छोड़ सकता था। अरबों में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसने कहा कि मैं नमाज नहीं छोड़ सकता, और कुछ बताओ। तो उस जिन ने चीख मारी और पानी में चला गया। अच्छा। तो ये भागता भागता डर के आया, तो ये पहुंचा अपने पड़ोसी के पास। उसने गालियां दी, तूने मुझे जलील कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। मतलब पड़ोसी ने जादू करने से कहा कि तुमने क्या किया। तो तुम बेसिकली पीपल गेट रिच, और ये जो पैसा है आप देखें सुभान अल्लाह, कुरान में क्या आता है, इन्न लज़ीना कफरू युनफिकून अमवालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह। वो लोग माल खर्च रहे हैं ताकि आपको अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर लें। लेकिन ये जो माल होगा ये अल्टीमेटली इनके लिए है सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरा, इनके लिए हसरत का बायस बनेगा, जिस पर हम एंड में आएंगे। लेकिन माल आप देखें सुभान अल्लाह, इफ यू काउंट द स्टैटिस्टिक्स कि लोगों को दीन से गुमराह करने के लिए यूएस में ही कितने ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। इंडस्ट्री देख लें और इस तरह से बाकी जितनी भी इंडस्ट्री, 43 बिलियन डॉलर्स पर ईयर यूएस में म्यूजिक इंडस्ट्री पे खर्च हो रहा है। आपका जो जिक्र है वो म्यूजिक बन जाए, हालांकि एक मोमिन का जिक्र कुरान या वो अज़कार होते हैं, म्यूजिक बन जाए। 1 मिलियन सॉन्ग्स एवरी ईयर रिलीज होते हैं। मैं तो सुन के हैरान रह गया। और शेख आप वो स्टोरी पे अगर जाए ना आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस की, तो उसने धोखा दिया कैसे था कि तुम अमर हो जाओगे, तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगे और तुम फरिश्ते ना बन जाओ, तो इमॉर्टल बन जाओगे अगर। और ये मैं आप दोनों को ना एक इंटरेस्टिंग सैटेनिक वर्जन बताता हूँ इस स्टोरी का, जो फ्रीमेसन्स जो है ना उनके सर्कल्स में सुनाया जाता है। अच्छा। वो ये कि एक्चुअली गॉड दो हैं। एक तो वो जाहिर है कि गॉड ऑफ अर्थ है, गॉड ऑफ हेवंस। अल्लाह ताला को नाउज़ बिल्लाह जो है ना ये अपना दुश्मन समझते हैं। उसकी वजह ये है कि इब्लीस ये बताता है, ये मतलब एक वर्जन मैं आपको सुना, सैटेनिक वर्जन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इब्लीस ये बताता है कि ह्यूमन बीइंग्स वर मेंट टू बी गॉड, बट वो जो गॉड था ना वो इनसिक्योर हो गया और उसने जो है ना इन्हें मना किया उस दरख्त से खाने से, क्योंकि उस दरख्त में वो ट्री ऑफ नॉलेज था, ट्री ऑफ इन्फिनिटी था। तो वो खा लेते तो ये अपनी उसमें असल उसमें आ जाते और इन्होंने गॉड बन जाना था। तो मैं इनको फ्रीडम देना चाहता था, लेकिन उस गॉड ने मुझे भी निकाल दिया, नाउज़ बिल्लाह इन्हें भी निकाल दिया। अल्लाह। अब ये पूरी गेम है, पूरी स्टोरी। और देखें अल्लाह ताला ने ये बातें सूरह अल-अराफ में भी और मुख्तलिफ आयात में कि शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखे में ना डाले, यानी तुम्हें कोई ऐसे नेगेटिव प्रोपेगेंडा ना करे, ऐसी स्टोरियां ना सुनाए। और लिटरली ये एक वर्जन है इनके फ्री मसोनिक सर्कल्स में कि एक्चुअली मैं सेवियर हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हें ट्री ऑफ नॉलेज से खिला रहा था, वो जो एप्पल का कॉन्सेप्ट है ना कि एप्पल खिला रहा था मैं तुम्हें ताकि तुम गॉड बन जाओ, तुम अमर हो जाओ। अब वही पर्पस हमने यहाँ पे अचीव करना है। वो कैसे हमने अचीव करना है, वो फिर उसके सारे इबादत और जो कॉन्सेप्ट्स हैं फ्री मेसनरी के और जो भी उनके सर्कल्स में होता है उसके एप्पल का मेरे ज़हन में ये एप्पल आया ये वाला। अल्लाह अकबर। ये एक थ्योरी है, आई कैन लिंक समथिंग, यू नो, ये खाया आउट ऑफ द एप्पल, ये खाया आउट ऑफ द एप्पल। बहरहाल ये कुछ जाहिर है इसका अगर आप देखें सुभान अल्लाह कि जिन्होंने आज तक क्लेम किया कि मैं रब हूँ, इब्लीस का वो चहीता है। जी हाँ, फिरौन ने कहा ना रब्बुकुमुल आला। हमने तावीज़ खोले हैं जिसमें फिरौन, कारून, हामान, शद्दाद के नाम लिखे होते हैं। जैसे हमारे लेजेंड्स कौन है, उमर बिन खत्ताब, अबू बकर सिद्दीक, अली बिन अबी तालिब। इब्लीस के लेजेंड्स कौन है, जिनको वो बहुत प्रेज करता है, हीरोज कौन है, वो लोग जिन्होंने गॉड होना क्लेम किया। और इब्लीस गॉड होना खुद भी क्लेम करता है और ये जो हरकतें करता है, जैसे अल्लाह का काना अर्शु अलल मा, अल्लाह का जो अर्श था पानी पे था, इब्लीस ने अपना तख्त पानी पे सजाता है। बिल्कुल सही, जस्ट टू। और ये जो टू का साइन है इल्यूमिनाटी का, फ्री मेसन्स का, और ये वाला साइन है, कोई पिक्चर न ले के यार तावी ने इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लिया। तो ये जो साइन है बेसिकली ये है 1+1, हमेशा ये एक है, वाहिद अल अहद, ये है एक के साथ एक और है। तो इब्लीस का जो भी हरकतें देखे ना, वो चाहता है कि मैं अल्लाह ताला ने जो किया है ना उसको रेसिप्रोकेट करूं और रेप्लिकेट करूं और वो मेरे में चीजें आ जाएं, इसलिए वो अपने को कहता है कि मेरे सामने वो यही क्लेम करता है ना, गॉड ऑफ अर्थ मैं हूँ। अगर आप सारे रिलीजन्स देख लें, इजिप्शियन माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी, उसमें हमेशा आपको ना एक ईवल सा गॉड भी मिलेगा। आप ये मार्वल की मूवीज उठा लें, ये जो थॉर है इसका जो भाई है लोकी, वो भी नेचर में तो गॉड ही है ना,
सो कॉल्ड गॉड, तो वो थोड़ा सा इवल है, वो रेबेलियस है, वो जेलस हो गया, यानी वही एडम एंड इब्लीस की स्टोरी। फिर इसी तरह हेडेस जो है, हेडेस ये ग्रीक मैथोलॉजी में गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड। इसी तरह हिंदू मैथोलॉजी में जाएं तो शिवा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। इसी तरह सुमेरियन मैथोलॉजी में जाएं, एनकी जो है वो इनका बहुत बड़ा गॉड, वो मेरे नजदीक यानी इब्लीस है। इसी तरह आप किसी भी रिलीजन में चले जाएं, आपको ना वहाँ डिफरेंट गॉड्स मिलेंगे और उनमें एक गॉड ये मिलेगा जो अंडरवर्ल्ड का गॉड है, जो मतलब बड़ा पावरफुल है लेकिन एंग्री है और बड़ा इगोइस्टिक है वगैरह वगैरह। तो ये वही स्टोरी बार बार कॉपी हो रही है, आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस वाली, तरह तरह माइथोलॉजीज आ रही हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर हम रिलीजन्स को एक्सप्लोर करेंगे ना मुख्तलिफ, तो इस्लाम इतना वाज़ेह हो जाएगा हमारे सामने, बिल्कुल सही बात। और हमें पता लग जाएगा कि मुख्तलिफ तरीके से किस तरह लोगों का अपना एजेंट बनाता रहा है। और आज फ्रीमेसन कह लें, इल्यूमिनाटी कह लें, पीपल कॉल इट कॉन्स्पिरेसी, फाइन कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन कुरान भी कॉन्स्पिरेसी, शैतान भी कॉन्स्पिरेसी, आप सेटन को भी कॉन्स्पिरेसी कहेंगे कि इब्लीस भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर तो सारी गेम ही खत्म हो गई। यही तो वो चाहता है। आज मैंने देखी है वो एक यूके में 2 फ्रीमेसन्स के, फीमेल फ्रीमेसनरी के ग्रुप्स हैं बड़े बड़े, और बीबीसी की पूरी डॉक्यूमेंट्री 15 मिनट्स का क्लिप है कि वो उधर उनके उसमें जाते हैं जो भी उनकी होती है जी हाँ, और चेकर्ड फ्लोर है वहाँ पे, और बड़ा वो अदब से खड़े हुए हैं, दरमियान से एक फ्लैग ले जाया जा रहा है और सारी वो एजेड फीमेल्स हैं। कबाला मैजिक जो ताहा भाई ने कहा ना कि 11, ये जो नंबर 11 है, 9 is the number of 10 is the number of God in Kabbalah magic. So when you jump directly from 9 to 11, you are bypassing God, surpassing God basically in order to mock him. ये पूरी साइंस है शेख, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, इसमें पुरानी कौमें भी पढ़ी थी। गारों में आप चले जाएं, पुरानी पेंटिंग्स हैं जिसमें न्यूमरोलॉजी नंबर्स लिखे हुए हैं। फिर ये एक डॉक्यूमेंट्री है एंशिएंट एलियंस, आम लोग देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं थोड़ा वाज़ेह कर देता हूँ। उसमें उन्होंने प्रूव ये किया है, साइंटिस्ट ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, पूरी टीम बनी है रिसर्चर्स की, पुराने केव्स में गए हैं, वहाँ पेंटिंग्स निकाली हैं, वहाँ नंबर्स निकाले हैं, साबित किया जो पिरामिड्स भी एलियंस ने बनाए हैं, इंसान भी एलियंस की बहुत हाई जेनेटिक इंजीनियरिंग है इंसान भी। और स्टीफन हॉकिंग बाय द वे, लेट मी टेल यू कि वो इस हद तक मान चुका था कि इंसान जो है ये क्रिएटेड है, ये तो पक्की बात है, और यूनिवर्स भी ज़ाहिर है को सुपर पावर रन कर रही है, लेकिन उसने जो क्रेडिट दिया वो एलियंस को दिया। उसने कहा था कि हमसे कोई बहुत हायर इंटेलिजेंस के लेवल पे एलियन सिविलाइजेशन है जिसने इंसानों को जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया। एक मूवी है प्रोमेथियस, मैं कुछ मूवीज का तज़किरा करूंगा तो ऑडियंस ये ना समझे कि हम बड़ी मूवीज देखते हैं, क्योंकि हमारा काम ऐसा है, तो ज़ाहिर है IMDb पे जाके सिनॉप्सिस पढ़ना, रिसर्च करना, और कोई मूवी देख भी लेना रिसर्च पर्पस के। और ये मूवीज में बहुत ज्यादा डिपिक्शन होती है इन चीजों की। शेख एक्समैन ले लें, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ले लें, आप ये हैरी पॉटर ले लें, हर मूवीज जो है ना उसमें ये चीज मिल रही है, एजेंडा के तहत बनी है। मूवीज में भी और गेम्स में भी। मुझे ये बताएं कि इससे क्या शैतान वाकई खुश होता है इस तरह की ये लोग हरकतें करते हैं? तो सारा मेरी तो रिसर्च है इस पे, इट इज ये रिचुअल्स होते हैं बाकायदा, लेकिन जाहिर है कि प्रोपेगेंडा इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है, एजेंडा। प्रोमेथियस का मैंने जिक्र किया, उसमें भी उन्होंने यही दिखाया कि हम एलियंस के क्रिएटेड। अभी रिसेंटली एक मूवी आई है, उसका मेरे जहन से नाम निकल गया, लेकिन सेम यही थीम है कि वी वर क्रिएटेड बाय एलियंस। इसी तरह नोहा एलियन थे, मोसेस एलियन थे, आर्क ऑफ द कोवेनेंट एलियन कोई टेक्नोलॉजी थी, इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम का शिप एलियन टेक्नोलॉजी थी। हर चीज एलियन से क्यों जोड़ें? क्योंकि अल्लाह ताला से ईमान उठा के कि हम वसवसे डाल रहे हैं, डाउट्स डाल रहे हैं। शैतान ने कहा था ना, इनमें फॉल्स डिजायर और डाउट्स डालूंगा, इनको मैं एस्ट्रे सेंड करूंगा। तो फिर साइंस के थ्रू और ये डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू यार इतना इन्वेस्ट जो कर रहे हैं शेख, हॉलीवुड की एक एवरेज मूवी मतलब $65 मिलियन की बनती है एवरेज, जिसकी रेटिंग IMDb पे 2 होगी या 3 होगी मैक्सिमम। मैं अच्छी हिट की बात नहीं कर रहा, एवरेज मूवी। और हमारे यूथ क्लब का शायद 10 साल का भी ये बजट ना हो, मतलब पूरे पाकिस्तान का, ठीक है। तो ये जो इतने पैसा लगा रहे हैं, देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट, वो कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे। गेम ऑफ थ्रोन्स का सिर्फ एक एपिसोड $15 मिलियन पे खर्च कर रहे हैं। सॉन्ग्स का है वो, माइकल जैक्सन का जो एक बड़ा मशहूर गाना है, वो $1 मिलियन का उसकी प्रोडक्शन है सॉन्ग की। शायद एलियंस की आपने बात की, एलियंस पे मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले आपने एक 3 जो खबीस लोगों के नाम लिए थे, फेरो, कारून और हामान जी। सूरह गाफिर में एक वर्स है, मेरे जहन से एग्जैक्ट वर्स निकल गया है, बट उसमें तीनों का जिक्र है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने मूसा को साइंस के साथ भेजा और मिरेकल्स के साथ भेजा, मोजज़ात के साथ भेजा, टू हामान, कारून एंड फिरऔन। ये जो ट्रायंगल ऑफ इवल है ना शेख, कुरान में ट्रायंगल ऑफ इवल है। अब मैं आपको बताता हूँ, फेरो इज द सेकुलरिज्म, यानी लादीनियत, कोई गॉड नहीं है, मैं गॉड।
ह्यूमन बीइंग गॉड है, यू आर गॉड। आई एम का जो कॉन्सेप्ट है, जो आजकल इनकी म्यूजिक एल्बम्स के नाम भी आई एम होते हैं ना, बियॉन्से का पूरा टूर है आई एम के नाम से, आई एम। और इसी तरह एक वो रैपर है, उसकी पूरी एल्बम है आई एम के नाम से। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। तो ये रैप ऑफ गॉड के नाम से जो उसने जी निकाला था, तो बेसिकली दे कॉल देमसेल्व्स गॉड। यस, कि वी आर गॉड, वी कैन बी गॉड, ट्री ऑफ नॉलेज हमें मिल जाए। और वो ट्री ऑफ नॉलेज क्या है? वो जो इब्लीस देता है इन्हें महफिलों में, वो कहता है ना मेरे पास ट्री ऑफ नॉलेज अभी भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। स्टोरी सारी वही है जो पीछे से चल रही है बेसिकली। तो बहरहाल बियॉन्से का मैंने आपको बताया, तो मैं आपको बता ही रहा था कि ये सारी की सारी गेम, अच्छा अपने फिरौन जो था बेसिकली, फिरौन को मैं बता रहा था कि वो लादीनियत वाला पूरा सिस्टम है, और कारून कैपिटलिज्म यानी कि कंज्यूमरिज्म। अभी परसों ही माशाल्लाह साहिल भाई भी बात कर रहे थे कि लोगों को खपा दो, इस दुनिया में खपा दो, और पैसे बनाई जाओ, प्रॉपर्टी बनाई जाओ, कोई ज़कात कोई चैरिटी नहीं। तो कैपिटलिज्म का एक सिस्टम है पूरा। और तीसरा जो हमान है शेख, अगर आप देखें तो स्ट्रेटजी मेकर, फेरो को सारे मशवरे वो देता था, यानी प्रोपेगेंडा मशीन, इन शॉर्ट मीडिया। जब तक ये तीन चीजें जो है ना, मतलब कि एक गवर्नमेंट, एक इकोनॉमिक्स और एक मीडिया, ये गलत लोगों के हाथ में है, तो फिर चले मान ले फ्री में से लूमिनाटी एक प्रोपेगेंडा है, एक कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन दुनिया का इस वक्त निज़ाम जो दरम बरम हो रहा है, और जिस केओस में हम हैं, और जो चीज़ें हमारे बच्चों को दिखाई जा रही हैं, और जिस तरह पिछले 20 साल में मीडिया की मूवीज, गाने और लिरिक्स और सारी चीजें तब्दील हुई हैं ना, जिस तरह हाइपर सेक्सुअलाइज किया गया है हमारा वर्ल्ड, तो वो क्या हो रहा है? वेयर आर वी गोइंग? मतलब फिर आप क्या समझते हैं कि हु इज डूइंग ऑल? लोग समझते हैं ये कोइंसिडेंस है, लोग समझते हैं कि ये ऐसी मतलब कायनात की जो 20,000 साल से भी बड़ी हिस्ट्री है, उसमें ऐसा नहीं हुआ, और अचानक से ऐसा होना शुरू हो गया। और कहते हैं यार बस ऐसे ही हो रहा है। इतना कुछ जो है ना जानबूझ के, इवन इंडियन गाने में भी, पाकिस्तानी और हॉलीवुड गाने में भी ऑडियो पॉर्न जानबूझ के इनकलकेट किया जा रहा है, ताकि हम लोगों को किसी तरह से, आप पॉर्न इंडस्ट्री देख लेना, मतलब भरी हुई फिल्थ से, जितनी रिसर्च हो रही है चाइल्ड पॉर्न पे और पीडोफिलिया पे और कितनी चीजों पे, ये इंसान को करप्ट करने की कोशिश की जा रही है। सो ये डेफिनेटली इवन द वेस्ट रियलाइजेस दिस एंड दे डोंट स्टॉप। सो द अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि ये जो तीनों इविल ऑफ ट्रायंगल आपने बताया, ये तीनों चीजें अभी करंटली उसी कल्ट के हाथ में है, उसी 1% के हाथ में है। शेख फेरो भी एग्जिस्ट कर रहा है, और कारून भी एग्जिस्ट कर रहा है, और जाहिर है हमान भी एग्जिस्ट कर रहा है, और यही इसी के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था। मुसलमान की जिम्मेदारी यहाँ से क्या आयद होती है कि इस ट्रायंगल ऑफ ईवल को समझो। हम में से बहुत से लोग, अफसोस होता है कि उनको अवेयरनेस ही नहीं, उनको नॉलेज नहीं। आपने कहा ना शुरू में, बहुत से लोग इसको समझते नहीं, इन टॉपिक्स को डिस्कस होना ही नहीं चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल के सामने बड़े से बड़ा मोमिन आएगा और कन्विंस हो जाएगा। ये छोटी बात नहीं है। उसको पहचानने के लिए कुछ आप में मतलब अकल होनी चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस की कैपेबिलिटी, और अल्लाह ने ही बचाना है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन नॉलेज, इकरा, अल्लाह ताला ने पहली वही ये कि इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, अल्लाह के नाम से पढ़। तो नॉलेज बहुत जरूरी है शेख, कि इस वक्त हो क्या रहा है, हमारा सिस्टम रन कैसे कर रहा है। हमारे नौजवानों की जिस दिन आंखें खुल गई, मैं समझता हूँ कि रैप और हिप हॉप, इनसे नफरत हो जाएगी लोगों को, जैसे हमें हम इग्नोरेंट होके अभी तक चल रहे हैं। हमारी जो यूथ है, हमारी आंखें जो है ना, वो मटेरियल वर्ल्ड पे बहुत ज्यादा हैं अभी। इग्नोरेंस ही तो सबसे बड़ा उनका हथियार है। इग्नोरेंट करना है, इनको डिस्ट्रैक्शंस में लगाना है। ये नेटफ्लिक्स हो गई, ये सारे प्लेटफॉर्म, और इंडिविजुअलिज्म भी मैं कहूँगा कि अपने बारे में सिर्फ सोचना, अपने करियर के बारे में सिर्फ सोचना, होलिस्टिकली मत ना देखना अपनी लोगों को एज एन उम्मा, कि हमारी उम्मा जो है वो कहाँ जा रही है। अच्छा, इग्नोरेंस भी आपने कहा, और साथ इग्नोरेंस का डिस्ट्रैक्शन भी है। मतलब या तो जो इग्नोर्ड, जो ऐसा बंदा है जिसको नॉलेज नहीं है ना, वो तो उनका अपना बंदा है। जिसको नॉलेज है या कुछ सीखना चाह रहा है, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दो। वो जैसे नहीं कि बच्चों को भूख लगी होती तो उसको खाने नहीं रो रहा, तो माँ कहती है कि बेटा ये देखो चिंचना है, इसको देखो, और बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरह से ये शुरू से, इवन अल्लाह के नबी के दौर में भी, सूरह लुक़मान में आता है नंबर 6 में कि वमिन अन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह, कि जो लोग लहवल हदीस के जरिए लोगों को गुमराह करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और वो क्या था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाहु अकबर का कुरान पढ़ते थे, तो इन्होंने औरतें हायर कर ली थी, नाचने वाली, गाने वाली, म्यूजिक बजाने वाली। आज के सॉन्ग्स तो मेरे नजदीक ब्लैक मैजिक के स्पेल्स हैं, लिटरली। अब इसमें मजाक उड़ेगा हमारा, लेकिन गोरों ने इसमें रिसर्च की है। ये बार बार एमिनेम के सॉन्ग्स देख लें, बियॉन्से के सॉन्ग्स देख लें, उसमें 1 2 3 1 2 3 बहुत रिपीट करते हैं, अचानक काउंटिंग शुरू कर देते हैं 1 2 3 1 2 3। अब 1 2 3 ऐड करें तो 6 बनता है। बहरहाल ये एक अलग डिस्कशन है, लेकिन साबित ही होता है। मैं ये समझता हूँ, आपने बात की ना, इस पे आते
जो 666 का बेसिकली जो एंटी क्राइस्ट का एक क्रिश्चियन समझते हैं, आप वो भी देख लेना मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक में जो M है बेसिकली वो 666 का निशान है और पीछे लिखा हुआ है अनलीश द बीस्ट विद इन, गूगल के लोगों के बिहाइंड और ये भी सब एग्जैक्टली। और बेसिकली आप देखें अल्लाह की मैंने फरमाया था कुतिबा बैना आइनैहि काफरा, दज्जाल के आंखों के बीच में क्या लिखा होगा, काफ फा रा। आप तीनों को लिखें, काफ लिखें ऐसे काफ होता है, ठीक है। अगर आप लिखे तो ऐसे होता है, अगर आप इसको टिल्ट कर लें काफ फा रा 666 बनता है। बाइबल में है 666 इज द नंबर ऑफ द बीस्ट, एग्जैक्टली ये बाइबल की वर्स है। बिल्कुल। तो दूसरा ये जो लोगोस की आपने बात की, इस पे वो कहते हैं जी कि उन्हें दिखाने की जरूरत क्या है, इतना एविडेंट क्यों है। जैसे मैं कमेंट पढ़ा था, उसने कहा हुआ था जी कि पाकिस्तानियों को ये सारी चीजें क्यों नजर आती हैं। असल में बात ये है कि जो भी लोग पावर में होंगे वो फिर अपने सिंबलिज्म के थ्रू ही चीज दिखाते हैं कि वी आर इन पावर, कर लो जो करना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप वो देखिए सारे मैसेजेस आपको नजर आ रहे हैं, मूवीज में सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन यू कांट डू एनीथिंग। वही बात हम कर रहे थे ना, इट इज अ फॉर्म ऑफ रिचुअल एज वेल ना। जी, सिर्फ ये तो नहीं है कि वो सिर्फ पावर में है और वो दिखा रहे हैं अपना सिंबल, बल्कि ये भी है कि वो दे आर ट्राइंग टू प्लीज शैतान। ये सिंबल से एनर्जी गेन करते हैं। हाँ, गेम्स वो भी जो तो है मैक्सिको है ना, मैक्सिको लैंड ऑफ सॉर्सर्स एक डॉक्यूमेंट्री है, और अगर आप किसी में जो देख रहे हैं वो जाके देखें जरा, मैक्सिको बड़ी हॉरिफिक है, रात को खेलना देखिएगा, इसमें गंद है, जादू है उसमें सारा। जी हाँ। और उसमें वो क्या करते हैं बेसिकली शैतान के नाम पे, उसमें गोट है बेफोमेथ, जो कि उसको करते हैं, इनका भी वन ऑफ द गॉड, ठीक है, उसके नाम पे मुर्गा ज़िबा किया, और फिर स्टार के बीच, द स्टार ऑफ डेविड, उसके बीच में आके उसका खून अपने मुंह को लगाया और कहा कि प्लीज गॉड बी प्लीज विद अस, आप आ जाएं, हमारी मदद करने हाजिर हो जाएं। जो हम मुसलमान अल्लाह के लिए यानी ये हरकतें तो नहीं करते, मुंह पे खून लगाते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए कुर्बानी करते हैं। तो इब्लीस सिंस वो एक जेलस है और वो खुदा बनना चाहता है, तो कहता है कि तुम मेरे नाम पे करो ताकि मैं अपना कल्ट बना लूं। वो जो इवन रिपोर्टर था उसमें वो भी बेहोश हो गया था, बेहोश हो गया था। यस, मतलब ही गॉट अंडर द ट्रांस में चला गया था, था, उसको ठीक करने लग गए थे यार कि पानी फेंको, इस पे क्या हो गया। बिल्कुल। बहरहाल शेख, बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज हैं मैजिक पे, जैसे आपने मैक्सिको वाली की, इस तरह इनकी मूवीज में कई बार इन्होंने ऐसी चीजें एक्सपोज करने की कोशिश की हैं जिसमें मैजिक दिखा रहे हैं कि कुछ लोग मैजिक में इन्वॉल्व हैं। देखिए शेख, मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आप दोनों को पता होगा, हमारी ऑडियंस के लिए, कि जब द ग्रेट वॉर हैपेंड वे बिफोर ह्यूमैनिटी बिटवीन द एंजल्स एंड द जिन्नास, तो अलबिदाया वन नहाया में खैर दो और मखलूकात आती हैं, वो ज़ईफ रवायत है थोड़ी, हनून और बनून का भी जिक्र है, हिंस एंड बिन्स। ग्रीक मैथोलॉजी में टाइटन्स का कॉन्सेप्ट है। हमारे बच्चे गॉडजिला की मूवी देखते हैं और वो डिफरेंट गॉड्स, so called gods used to rule the world before human beings, ग्रीक मैथोलॉजी ये। और फिर ओलंपियंस आए टाइटन्स को डिफीट करने, ये उनकी मैथोलॉजी। ओलंपियंस जो है वो मेरे नजदीक एंजल्स हैं। बहरहाल मैं जो बात बता रहा था कि मैंने आपकी बात से यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। इवन अलेक्जेंडर की माँ ने भी ना अलेक्जेंडर कहा था कि पुत्र तू जो है ना, यू आर द सन ऑफ ज़ूस। जी, यू आर द सन ऑफ ज़ूस, यानी ज़ूस इज द गॉड ऑफ गॉड्स, ग्रीक मैथोलॉजी। और उसको ये रियलाइज है कि तुम यू आर नॉट इन द रेल्म ऑफ पीपल, यू आर वन ऑफ द गॉड्स। और उसमें एक शैतानी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी का वो लेवल डेवलप हो गया, जिससे उसे तकब्बुर में आ गया, पूरी दुनिया पता करती है। तो आपने सुना होगा कि शयातीन को, जो रेबेलियस डेविल्स थे, उनको एंजल्स ने मार भगाया था जजीरों की तरफ। यस, एग्जैक्टली, तफसीर इब्न कसीर में सही रवायत है। बिल्कुल। अब एक थ्योरी ये भी है, इसमें सच्चाई, मेरे नजदीक इसमें सच्चाई बहुत है, कि तब से समन किया जा रहा है उन रेबेलियस डेविल्स को टू कम आउट, एंड ऑल्दो उन्हें भगा दिया गया था, और रिचुअल्स किए जाते हैं टू कॉल अपॉन देम इनटू दिस डायमेंशन, और थ्रू पोर्टल्स, ये जो पोर्टल्स का सिस्टम है। इनफैक्ट एक थ्योरी तो यहाँ तक है कि 911 वाज अ big ritual of sacrifice in order to open up that portal, जिसके थ्रू वो रेबेलियस डेविल्स को बुलाना था फॉर द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमने सेट करना है, तो इमोरलिटी को, ड्रग्स को, फहाशी को, पोर्नोग्राफी को, वी हैव टू स्प्रेड। And if you see, the world has changed significantly after 9/11. शेख, हर घर में आग लगी हुई। वो एक वीडियो है पेट गोट के नाम से, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, और वो टर्की ने उसका जवाब दिया, एनिमेटेड। उसमें आप देखें कि वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश बोर्ड पर बैठा होता है, बोर्ड पर ना कुछ डायग्राम्स है,
اس میں لٹرلی پورن کی طرف اشارہ ہے کہ ہر گھر میں آگ لگی ہے, ہر گھر میں بندہ بیٹھ کے پرورٹ ہو چکا ہے, اور میں ورڈ وہ کیا بولوں, میسٹربیٹ کر رہا ہے بیٹھ کے اور پورن دیکھ رہا ہے, اور یہی آگ لگنا ہے, یہی فیملی سسٹم کی بربادی ہے, یہی ڈیورسز کرائے گی چیز, یہی چیز افیئرز اور پھر لڑائیاں آپس میں ایکسٹرا میچ, دس از ہیپننگ. اب دیکھیں نا, یہ فٹ بال لیگ اتنی بڑی لیگ ہے, باسکٹ بال لیگ اتنی بڑی ہے, ہاکی لیگ اتنی بڑی ہے, پورن کی جو لیگ ہے نا, پورن کی جو انڈسٹری ہے, اٹ از اے ملٹی ٹریلین انڈسٹری, بگر دین دا فٹ بال, ہاکی, باسکٹ بال, ان سب کو کمبائن کر لینا, ان کا ریونیو اتنا نہیں جتنا پورن کا ریونیو ہوا ہے. اور ایلیکس جونز ایک بندہ ہے, جو liberals don't like him, they call him conspiracy theorist, and obviously David Icke, yes کچھ بونگیاں بھی مارتے ہیں, لیکن اس نے پوری ڈاکیومنٹری بنائی تھی بوہیمین گروو جا کے, ویڈیو پوری ریکارڈ کی تھی, جس میں اس نے سینیٹر کو دکھایا کہ وہ ننگا نیکڈ ہو کے, وہ الو کا مجسمہ تھا, اس کے ارد گرد وہ طواف کرتے ہیں, اور وہاں پہ اس نے دکھایا کہ یہ فیمس پورن سٹارز اور یہ جو سو کالڈ بگ ایکٹریسز اور ایکٹرز ہیں, یہ وہاں آتے ہیں اور غلیظ حرکتیں, گندی حرکتیں کرتے ہیں, آ کے ریچولز ہوتے ہیں, جتنی امورالٹی ہوگی, جتنی بدکاری ہوگی, اتنی انرجی ملے گی شیاطین کو. تو اس نے ہی کنفرنٹڈ دیٹ سینیٹر جب وہ وائٹ ہاؤس سے باہر آ رہا تھا, تو وہ ویڈیو ہے یوٹیوب پہ, اور اس کے ہوش اڑ گئے تھے. اس نے کہا کہ وائی ڈیڈ یو چیز می, یہ تم نے صحیح نہیں کیا, یہ تم نے جو ہے نا میری پرائیویسی بریچ کی. ڈیوڈ آئیک نے اس کو کیا؟ نہیں, ایلیکس جونز نے. اچھا. تو وہ ایک دم اس کی ہوائیاں اڑ جاتی. تو وہ کہتا ہے میرے پاس ویڈیو ہے, آپ کیا کر رہے تھے, وائی ور یو رننگ نیکڈ ان دا فارسٹ, اور آپ الو کے مجسمے کے پاس کیا کر رہے تھے. تو وہ غصے ہو جاتا ہے, کہتا ہے اٹس نن آف یور بزنس. پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک سوشل کلب ہے, ہم وہاں سوشلائز کرنے جاتے ہیں, ہم وہاں تھوڑا ریلیکس ہونے آتے ہیں, تمہیں کیا تکلیف. تو کہتا ہے مجھے یہ سمجھائے نا یہ کیسی ریلیکسیشن ہے, الو کا مجسمہ تھا اور وہاں پہ فیک ریچول, بلڈ کا ایک ریچول ہو رہا تھا, ذبح کیا جا رہا تھا. شیخ یہ موک کرتے ہیں نا, بیفومیٹ کا جو مجسمہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا لیم, اس کی یہ کرتے ہیں بیسیکلی, اس کی موکنگ کرتے ہیں, جتنا میں نے پڑھا. ساری چیزوں کو موک کرتے ہیں, ریلیجس سمبلس کو نا, مرد اور عورت کو ایک دکھایا. بیفومیٹ کے مجسمے میں آپ دیکھیں بریسٹ بھی ہیں اس کے, اور ظاہر ہے تھوڑی سی سوری پی جی ریٹڈ لینگویج ہے, اور اس کے میل پارٹس بھی ہیں, یعنی ایوری تھنگ از کمبائنڈ, کریشن از ون, اور پھر یہ سنگولیرٹی کا کانسیپٹ ہے وہ ایسے ہیں ایگزیکٹلی. اور اس میں ڈارک نالج بھی ہے, اس میں لائٹ کا نالج بھی ہے, سٹارز کا نالج بھی ہے. تو تمام قومیں اگر آپ پیچھے سے لڑی ملا لینا, یہ اس سارے پوائنٹ کا کرکس کیا تھا کہ they do rituals to summon devils. devils کو سمن کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہمارے یہ جو جادو کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھتے نہیں, یہ چلے نہیں کاٹتے جا کے, تو ان لوگ کو یہ اس طرح سمن کرتے ہیں غلاظت کے تھرو اور یہ خباثتوں کے تھرو. مسلمانوں نے بیفومیٹ کی جو ہے نا تصویریں اپنی گاڑیوں کے پیچھے لگائی ہوئی, کتنی عام ہو گئی ہیں. یہ جو گوٹ ہے بیسیکلی, جی اس کا کیونکہ اس کا سمبل جو ہے نا بیسیکلی گوٹ یا لیمپ سے دیا جاتا ہے, اس کی لگائی ہوئی ہیں, اور وداؤٹ ریئلائزنگ, کیونکہ سبحان اللہ یہ کیا ہے کہ وہ سبلیمنل مارکیٹنگ کے تھرو وہ اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں. اور ہمارا مسلمان بیچارہ بے وقوف, وہ جو ہے نا, ہم ناچتے ہیں تو مجھے یاد ہے ہم جو ناچتے تو ایسے ایسے کر کے ناچتے ہیں, حالانکہ ہمیں پتہ نہیں تھا یہ کیا چکر ہے. بس یہ سمبلس کے تھرو شیطان جو ہے نا, آپ کو میرا جو ایک ای میل آئی ڈی ہے ابھی بھی جو فیس بک کا ہے پرانا, وہ کیا ہے, دا ان اللہ the charming prince, نہیں دا بلیک ڈیول. اچھا, but you're white. نہیں, میرا جو ای میل ہے, میں اپنی بات نہیں کر رہا. ہاٹ میل کا ہے the_stained, اور یہ nile.cbi, یہ آپ یار کو آج پتہ میں ہے نے پکچرز پرانی کچھ دیکھی, جی میل کا ہے. آپ کی نا ایسے بال ایسے نا نوکیں بنی ہوئی تھی اس کے, ہے نا. شیخ میں فرسٹ فارم آف میوزک میں پڑھ گیا تھا, ڈیتھ اینڈ بلیک میٹل میں. میرا ایک دوست تھا زرار, ماشاءاللہ اللہ نے اس کو بھی اب ہدایت دی, ماشاءاللہ بہت اب نیک بچہ ہے. تو ہم دونوں سنتے ہوتے تھے یونیورسٹی میں, اور میں لیرکس بیان نہیں کر سکتا, بڑے بینڈز کے بھی نام میں نہیں لوں گا یہاں پہ, کس طرح کے سیٹینک لیرکس ہوتے تھے. یار ویسے اس وقت سمن کرتے تھے, ہمیں پتہ نہیں ہوتے تھے, we would just ہم سنتے تھے, memorize. and میں نے ایک بار شیخ واللہ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں, میرا کیلکولس کا پیپر تھا انجینئرنگ میں, اور میں رات کو یہ منحوس گانا, اس کا میں نام نہیں لوں کیونکہ لوگ سرچ کر لیں گے, ایسے نحوست آ جائے گی ان کی لائف میں. ایک بینڈ ہے بلیک میٹل, ڈیتھ میٹل اینڈ بلیک میٹل, اس کا گانا تھا, اور وہ لٹرلی شیطان کو سمن کر رہا تھا اس گانے میں. اچھا, میجسٹی کہہ کے, فیتھفل می, میجسٹی فیتھفل می, کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا, اس رات میں نے اس پہ غور کر لیا, اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ رات میری کیسے گزری تھی. مطلب لٹرلی مجھے منحوس سی ایک فیلنگ آ رہی تھی, اور ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بڑی نیگیٹو انرجی میرے روم میں آ چکی. اس کے بعد میں نے وہ گانا نہیں سنا. شیخ کمرہ تھا دور جاہلیت میں ہمارے دوست کا نا, اٹ واز فل آف, وہ اسکیچنگ کرتا تھا, اٹ واز فل آف اسکلز,
इट वाज फुल ऑफ स्केचिंग थी, उसने न्यूड गर्ल्स बनाई हुई थी, ठीक है, और वो अक्सर काला होता था कमरा, एंड दैट वाज आवर पार्टी रूम, ठीक है, और वहाँ पे हमेशा अक्सर मैडोना के गाने जिसमें वो जो है ना उसने काला लिबास पहना हुआ है, और शैतान को ना काला रंग बड़ा पसंद है, बिल्कुल वो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करता है ह्यूमन फॉर्म में इजीली काले कव्वे, काले कुत्ते, काले सांप की फॉर्म में इजीली आता है। और आप मैडोना के सॉन्ग्स देख लें, उसमें काले कव्वे ओढ़े हैं, ठीक है, और वो क्या क्या वो समन कर रही है, इंटरेस्टिंग एक सॉरी वाकया आपको सुनो यहाँ से याद है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नों को दावत दी थी ताइफ से वापसी पर वादी नखला में, तो अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैं एक बार तो ये थी ना, एक बार फिर गए रसूलुल्लाह तो मैं साथ गया था, तो हमने डार्क क्लाउड्स और ये इस तरह के डार्क साए ना यूं घूमते देखे। ये अब्दुल्ला इब्न मसूद ने पूरी डिस्क्रिप्शन दी है जिन्नात की, और वो साए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे तो उनके इर्द गिर्द आ गए और इर्द आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए, और नबी सल्लल्लाहु सुबह फजर के टाइम वापस हाँ, बिल्कुल। ये अब्दुल्ला अर्हिकल मखतूम में पूरा वाकया ये लिखा है। इससे साबित होता है कि उनकी क्रिएशन ना मतलब इस तरह डार्क और थोड़े साए जैसे ये वो जो अल्लाह की जब दुआ की थी जब लोग मदीना में आए थे जी और हिजरत करके आए थे तो बीमार हो गए सारे सहाबा, मुश्किल में आ गए। अल्लाह की मैंने कहा था कि या अल्लाह इस मदीना से ले जा, यानी बुरी बादलों को, वबाओं को ले जा और शयातीन जिन्नात को ले जा। तो सहाबा ने ख्वाब में देखा कि काली जो है ना लंबी काली कपड़ों वाली चुड़ैल जो है वो निकल के जा रही है। इवन खालिद बिन वलीद को अल्लाह ने भेजा कि जो उस मूर्ति को तोड़ के आओ, और जब वो मूर्ति को मारा, स्ट्राइक किया, वापस आने का तोड़ दिया, उन्हें नहीं तोड़ा, जाओ दोबारा तोड़ो। जब उन्हें गिराया बिल्कुल किया तो उसमें से एक नंगी काली रंग की बड़ी खातून निकली, विच वाज अ फीमेल जिन, और उनसे बैटल की और खालिद वलीद ने उसको कत्ल किया। बिल्कुल। यानी द पॉइंट इज कि ये जो ब्लैक कलर है, मतलब ऐसी बात नहीं है कि हम ब्लैक पहन नहीं सकते, कभी भी पहन सकते हैं, लेकिन जो शेख इकबाल हैं वो तो अक्सर हमें कहते हैं कि ब्लैक अक्सर ना पहना करो, व्हाइट पहना करो, क्योंकि व्हाइट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा है। और ये जो ब्लैक से मोहब्बत है ना, यू नो, डार्क में रहना, अकेले रहना। इवन कुछ दिन पहले पाकिस्तान में पुलिस वालों ने एक शख्स को निकाला है जो कि कब्र के अंदर बैठा हुआ था ऐसे करके, और वो कब्र पूरी बंद थी। वो क्या कह रहा था? जादूगर शैतान को डार्क में पुकार रहा था, ये चिल्ला काटना है। घरों में जाके एक स्टार के साइन में या ट्रायंगल के साइन के अंदर बैठ के उसमें से निकलना नहीं है आपने, पेशाब भी वही करना है और अपने एक्सक्रीशन भी वही करनी है, और वहां से फिर खलीज और गंदा होकर आप इनको पकाना है। बाय द वे, आपको हिस्ट्री फ्रीमेसन की मतलब आपने पढ़ी कभी कि कहाँ से शुरू, कहाँ से? बताएं, मैं लाजिम टेम्पलर से मतलब आता है ना, इनके बारे में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के दौर में असल में नाइट टेम्पलर्स एक एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन ग्रुप था। दे क्लेम टू बी क्रिश्चियन लेकिन एक्चुअली दे वर सैटनिस्ट। दे हैड स्टार्टेड समनिंग शैतान, दे वर इन्वॉल्वड इन रिचुअल्स एंड अकल्ट प्रैक्टिसेस। मुझे ये बताएं, फायर वर्शिपर्स और ये दीज आर टू डिफरेंट पीपल? नहीं, ये डिफरेंट है। फायर वर्शिपर इज समथिंग एल्स। तो बेसिकली दे वर आफ्टर द ट्रेजर्स अंडर द थ्रोन ऑफ सुलेमान अलैहिस्सलाम। असल में एक मिथ मशहूर थी कि नेशनल ट्रेजर के नाम से एक मूवी भी है कि टेंपल ऑफ सोलोमन में जो तख्ते सुलेमान है ना जी, उसके नीचे कुछ नुस्खे हैं और वो पावर के सिंबलिज्म है। एक तो आर्क ऑफ द कोवेनेंट के पीछे ये यहूदी भी है, जेरूसलम मस्जिद अक्सा, दे बिलीव कि आर्क ऑफ द कोवेनेंट वहाँ है। और ताबूत सकीना, इसका जिक्र कुरान में भी है, और उसमें मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी है अकॉर्डिंग टू द मिथ्स, और हारून अलैहिस्सलाम के कपड़े हैं, रेलिक्स हैं, वो चीज़ें, और जिसके पास वो होगा वो सिंबलिज्म ऑफ पावर होगी। जैसे वो जालूत थे गालिबन, तालूत को अल्लाह ने ताबूत सकीना दिया जो सिंबल था पावर का, सूरह बकरा में पूरा वाक़या। और फिर गोलायत को डेविड ने मारा था और फिर डेविड के पास वो ताबूत सकीना आया। तो एक तो ये कहते हैं कि वो हमें चाहिए आर्क ऑफ द कोवेनेंट। इसमें इंडियाना जोन्स की पूरी मूवी भी है, अगर वो मिल गया तो हम पूरी दुनिया में राज करेंगे। और वो कहते हैं कि बेसिकली दिस इज द, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो हवाओं पे और जन्नात पे और जानवरों पे रूल किया, वो कैसे किया? वो ये नहीं कहते कि अल्लाह के हुक्म से किया, वो जादू से किया। तो उनके पास ना सारे नुस्खे जादू के मौजूद हैं, जादू से किया। अल्लाह ताला कहते हैं वमा कफर सुलेमान वलाकिन कफरू, और ये इनको वो नुस्खों तक पहुंचना चाहते थे, नुस्खों तक पहुंचना चाहते थे। तो अल्टीमेटली मिथ ये है कि दे फाउंड इट। उसके बाद दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट, बट सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने चुन चुन के इन्हें मारा, बिकॉज़ ऑब्वियसली दे वर इन्वॉल्वड इन फिल्थी प्रैक्टिसेस, और लड़ाइयां डलवाते थे और बड़ा कुछ करते थे। तो दे रैन अवे,
and some of them they reach England, اور وہاں پہ جو کنگ تھا اس ٹائم کا رچرڈ آئی تھنک رچرڈ the third یا fourth, اس کے پاس انہوں نے نا اپنی کچھ پریزنٹیشن دی, پریزنٹ کیا اپنی اس چیز کو جس سے وہ امپریس ہوا. and some of them ran to Germany. جرمنی والی جو شاخ ہے وہ الومیناٹی کہلائی اور یو کے والی جو شاخ ہے وہ فری میسنری کہلائی. اب یہ صرف نام ہے, اگین میں یہ کہوں گا چلو مان لو یار ایک کانسپیریسی, کوئی فری میسن الومیناٹی نہیں ہے, لیکن تھرو آؤٹ ہسٹری اکلٹ پریکٹسز ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. آپ کو پورا ایجپشین ریلیجن یہ ثابت کر رہا ہے کہ میجک پریکٹس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. سومیرینز میجک پریکٹس کرتے تھے, بلیک میجک میں فلتھ میں انوالو تھے, سٹارز کا نالج شروع سے, ایسٹرالوجی کا نالج شروع سے, انسان کا رخ آسمانوں کی طرف ہے کہ نہیں. ساری قومیں دروازے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی, پکی بات. وہ والے دروازے جو انٹر گلیکٹک ٹریول کے دروازے ہیں, انٹر ڈائمینشنل ٹریول کے دروازے ہیں, جیسے جبرائیل علیہ السلام کیسے آتے ہیں, کیوں آتے ہیں, ہمیں بھی وہ نالج چاہیے. اور البدایہ و نہایہ میں آتا ہے کہ ابلیس نے, عزازیل نے نالج لرن کر لیا تھا, اس لیے اس کو سلطان الارض کہا جاتا تھا کہ ہی نیو دا ڈورز, یہاں سے وہاں تک, دوسری ڈائمینشن تک, یعنی ہیونز تک, دوسرے ہیونز تک. اور ہولی اسکرپچرز میں ہے کہ دروازے ہیں, یعنی آسمان کے دروازے, وفتحت السماء فکانت ابوابا, اللہ قیامت والے دن سارے دروازے کھول دیں. اور یہ جو شیاطین اور جنات جو اوپر جاتے ہیں, یہ باتیں سننے اور دروازوں پہ جو ہو رہا ہے, جو فرشتے کلام کر رہے ہیں, قرآن میں جب آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو یہ جنات خود کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, قرآن میں آتا ہے جو جن میں, وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. جب بھی ہم آسمانی طرف جاتے تو ہم نے بڑا اسٹرکٹ پہرا پایا اور جو ہے نا وہاں پہ گارڈز پائے. بالکل. اور جب بھی ہم کوئی بات سننے لگتے فَوَجَدْنَاهَا شِهَابًا رَصَدًا, کہ جب وہ ہمیں نا ایک پورا سٹار فالو کرتا ہمیں جلانے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ یہ ان کو کاش ہمارے بچے نا یہ اس طرح ویژولائز کر سکتے جیسے یہ مارول کی موویز ویژولائز کرتے ہیں. گارڈینز آف گیلیکسی ایک مووی ہے, وہ کیا ہے کہ اوپر تمہارے گارڈینز بیٹھے ہوئے ہیومن بینگز کو, ارتھ کو سیو کر رہے ہیں. اب وہ اس میں گارڈینز آف گیلیکسی ہو گئی, یا ایک وہ اس میں کریکٹر ہے خاتون, اس کا کیپٹن مارول, وہ ایک سین میں سامنے جا کے کھڑی ہو جاتی ہے دنیا کے, اور وہ جو ایک ولن ہوتا ہے اس کو مطلب آنکھیں دکھاتی ہے کہ اب گزر کے دکھاؤ. تو یہی باتیں جب اسلام بتاتا ہے کہ اینجلز کھڑے ہوئے اوپر, گارڈین آف گیلیکسیز کون ہے اصل میں, اللہ تعالیٰ نے اینجلز کو بنایا. پتہ نہیں کون کون سا اینجل اوپر کھڑا ہوا ہے, کس طرح گارڈ کر رہا ہے شیطانی فورسز سے. وہ ڈورز نہیں کھول سکتے وہ والے, وہ ٹریول نہیں کر سکتے وہاں سے. حدیث میں واضح ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آسمانوں پہ کوئی ایک 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی شیطان, معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینجل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف نہیں ہے, یا سجدہ یا رکوع یا قیام کر they are everywhere. اور دیکھیں ایک بات میں چاہوں گا آڈینس بھی اس پہ غور کرے, آپ دونوں بھی, کہ جب سے دنیا بنی ہے نا, سارا میڈیکل نالج اور فزکس کا جو نالج ہے, یہ 2 پیک کے نالج, ایک فزکس, ایسٹرو فزکس اس دور کا جو ہے نا, وہ آپ کو پتا ہوگا کہ آج کا جو سائنٹسٹ ہے نا وہ پروفٹ ہے, ایسٹرو فزسسٹ جو ہے. بالکل, وہ ایسٹرو فزکس ان کے لیے ریلیجن ہے, لبرلز کے لیے خدا, ایسٹرو فزکس بس. تو جب سے یہ نالج ایگزسٹ کرے نا, فزکس اور میڈیکل سائنس, 2 چیزوں کے پیچھے ہیومینٹی شروع سے لگی ہوئی ہے. ایک ٹیلی پورٹیشن, ٹھیک ہے, کہ کسی طرح ٹیلی پورٹیشن ہو جائے, جیسے ڈاکٹر اسٹرینج وہ مارول موویز دکھاتے ہیں نا, اس نے گول دائرہ بنایا, ٹیلی پورٹ کیا, فلانے کو پھینکا, انٹارکٹیکا پہنچا دیا یہاں سے. یہ جو شارٹ, یہ ڈورز ایگزسٹ میں یہ چیز بہت زیادہ ہے, اور یہ ڈورز ایگزسٹ کرتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ایک تھیوری ہے کہ برمودا ٹرائنگل ایک پورٹل ہے, وہاں پر ٹائم کا گلیچ ہے, ٹائم کنٹینیوم ہے, بہت سی موویز اس پہ بنی ہیں, میں ڈیٹیل میں کیا جانا. اس طرح یہ پیرامڈز پورٹلز تھے, اور پورٹلز کے تھرو یہ ٹریول کرتے تھے, شیاطین کو سمن کرتے تھے, بڑا کچھ کرتے تھے. یہ بھی ایک سٹوری ہے, تھیوری ہے. ایک شیخ ٹیلی پورٹیشن, کہ کسی طرح ہم یہ نالج سیکھ لیں, جیسے دجال کے پاس تو ہوگا, وہ تو اب دجال کی گیم تو اور ہے, تو ہم کل ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ یہ دجال پری ہسٹورک ہے, مطلب مین سے بھی پہلے کا, یہ ہے کون. بالکل, یہ بڑی ایک زبردست تھیوری ہے میرے پاس. خیر, میں صرف ایک حدیث کو ٹچ کر لوں اس میں, اور پھر کل انشاءاللہ سے امید ہے کہ کل کے ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم دجال کے اور شیاطین کا وہ ذکر کریں گے. صحابہ نے جب پوچھا نا کہ رسول اللہ علیہ وسلم دجال کیسے ٹریول کرے گا زمین میں, فرمایا کالغیث استدبرتہ ریح, تیز بارش کی طرح جس کو تیز آندھی اڑا کے لے جاتی ہے. اور یعنی 40 دن میں وہ پوری دنیا کے ایک چپے پہ, اور ایک دن اس کا سال کے برابر کیسے ہوگا, یہ ہم کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ.